morning, everybody. Hope you have decided आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है. समटाइम्स ये होता है कि इफ वी आर चूजिंग द कॉमर्स, हमारी सोसाइटी की एक मेंटालिटी है कि स्ट्रीम्स की जब चॉइस की बात आती है तो थोड़ा वंडरली वो लोग रिएक्ट करते हैं. हम ज्यादा उन बातों को नहीं खींचेंगे, बट बिलीव मी, if somebody comes to you and asking about your future, particularly in the stream of commerce, just give a simple answer: we will meet after 10 years. We will meet after 10 years. हम 10 साल बाद देखेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या है. जस्ट अ सिंपल आंसर. हमने जहां पे लास्ट लेक्चर हमारा छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे. हमने अकाउंटेंसी के बारे में देखा था. वी हैव स्टडीड about the history of mankind. We have studied the revaluation of scientific innovations. We have studied about the production techniques and changes in the market segments. We have seen the social development, the economical development of human being. हमने एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करी थी, हमने डेयरी हस्बेंड्रीज की बात करी थी, एनिमल हस्बेंड्रीज की बात करी थी, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज की बात करी थी, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड 21st सेंचुरीज ग्लोबलाइज्ड मार्केट. सो अब हम सीधे सब्जेक्ट पे आएंगे कि अकाउंटेंसी एक्चुअली है क्या. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेंसी, द सब्जेक्ट इज इन द फोर्स. बहुत लंबे समय से है. have been introduced when and where, the proper idea nobody knows, but when we are talking about the some of the principles of accounting, when we are talking about the books for the accounting, when we are talking about the recording, analyzing, classifying and reporting, or say controlling the segment of financial transactions. I am repeating, the segment of financial transaction. At the same time, we have to face a proper principles. We have to face a proper rule book. We have to find out the financial positions. We have to note down historical events. We have to create a book which can be shown the proper segments of the cash inflow and outflow, from which the procedure of the decision making, I am repeating the sentences, from which the procedure of the decision making can be easier. Easier for whom? Easier for investors, easier for auditors. Auditor means who are checking the accounts, and easier for a consumer or a customer to know the data. So from all of this, if we are taking the subject to the top of the level, the subject is divided into two parts. The subject is divided in the two part. The first part, what we call is accounts. The first part, what we call is accounts. And the second part, what we call is bookkeeping. Is what? Bookkeeping. Look at, both are the words have their own significance. Both are the words have their own methodologies. When we are talking about the accounts, means when we are talking about the subject element of accountancy, we have to face
four different kind of subjects. That is the matter of study, what we can call financial account, second cost account, third tax accountancy, and fourth but not the least managerial accounts. Look at the subject having four different branches, just like a science. Just like what? Science. If we are going to study the science, we have a three major parts of the science, that is what you call PCB: physics, chemistry, and biology. So when we are studying the accountancy, when we are studying the delivered subject in a very varied manner, we have to study four kind of major departments, that is financial account, cost account, tax account, you can say taxation also, and managerial account. When we are talking about the bookkeeping, when we are talking about what? Bookkeeping, it is a different part of the subject where you are going to maintain what? Historical events. Is to be recorded. मैं इस वर्ड को थोड़ा सा प्रेशराइज करूंगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंस दूंगा. इज टू बी रिकॉर्डेड, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो मेजरली 5 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, डिवाइडेड है. जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम अकाउंटेंसी या अकाउंट्स कहेंगे, जिसमें 4 मेजर डिपार्टमेंट है. फाइनेंशियल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, टैक्स अकाउंट है और मैनेजरियल अकाउंट है. इसका जो दूसरा पार्ट है वो है बुक कीपिंग, जिसमें हम हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिकॉर्ड करते हैं. क्या करते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिकॉर्ड करते हैं. तो यहां पे देखो आपके पास पांचों जो वर्ड है 5 आउट ऑफ 5 वो आपके लिए नए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके दिमाग में हो रहे हैं, आई नो दैट. वीडियो लेक्चर्स है, लाइव क्लास होता तो हम वन बाय वन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं वी कैन सॉल्व इट. जस्ट पास द कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. मैं मेरा नंबर भी दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम उसको अच्छे से डिलीवर करेंगे. तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो बेसिक पार्ट है अकाउंट्स का वो कहां से स्टार्ट होता है. तो हमारा जो बेसिक पार्ट है व्हाट वी कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वो स्टार्ट होता है यहां से, हमारे बुक कीपिंग लेवल से. हमारे किस लेवल से? बुक कीपिंग लेवल से. नाउ somebody has a question, sir, what is the difference between bookkeeping and accountancy? Bookkeeping is a primary books of accountancy which give you idea about your transactions, which give you idea about your transactions. Transactions क्या होते हैं हम उसका भी डिस्कशन करेंगे. So bookkeeping will give you idea about your transactions. Bookkeeping never suggests or bookkeeping cannot helping you to make the decision regarding economic events, decision regarding financial investments, decision making towards your profit and loss making situation, decision making towards your फाइनेंशियल और योर वेल्थ पोजीशन. यहां पे बुक कीपिंग आपकी कोई भी मदद कर सकता नहीं है. बुक कीपिंग कैन नॉट असिस्ट यू टू मेजर द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. बुक कीपिंग कैन ओनली गिव यू आइडिया अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस डे बाय डे इनटू द बिजनेस बाय द वे ऑफ रिकॉर्डिंग. By the way of मैं which word यूज करूंगा? Recording, journals, laser posting, and your subsidiary books. Look at here.
what the exactly bookkeeping is going? Preparing journals, preparing ledger posting, and preparing subsidiary books. When we are talking about the accounts, the different positions, financial accounts, cost accounting, tax accounting, managerial accounting, gives you an idea about your financial position, that in what condition exactly business has. बिजनेस अच्छी कंडीशन में है, बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन में है, बिजनेस में से क्या प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस कितना लॉस कर रहा है, बिजनेस का कौन सा डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, बिजनेस का कौन सा डिपार्टमेंट वीक है. हम ये सब कुछ जान सकते हैं. कहां से जान सकते हैं? बाय द वे ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स, दैट इज फिनेंशियल, कॉस्टिंग, टैक्स एंड मैनेजरियल अकाउंटेंसी. तो ये जो दोनों टॉपिक्स है, बुक कीपिंग और अकाउंट्स, ये दोनों अपने आप में डिफरेंट है, अपने आप में अलग है. दोनों के प्रिंसिपल्स, दोनों के स्टैंडर्ड्स, द वे ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स दोनों में डिफरेंट है. बट द वन थिंग इज कॉमन, दैट whatever kind of accountant are you, whatever your level in accounts, the basic things, the starting point of any financial book is coming through your basic, or your say your primary books, that is what we call journals. जर्नल्स जो है वो आपकी प्राइमरी बुक है. हम इसके ऊपर तो बहुत बाद में जाएंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस अबाउट द जर्नल्स, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाई शुड द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. और हम जो शुरुआत करेंगे वो यहीं से करेंगे, बुक कीपिंग से ही करेंगे. हम अकाउंट से शुरुआत तो बहुत लेट करेंगे, पहले तो हमें बहुत कुछ सीखना है इस सब्जेक्ट में. तो यहाँ पे ये आपकी प्राइमरी बुक है. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द जर्नल्स, we have a different kind of terminologies in accountancy. We have a different kind of principles of the accounts to study. We have to different kind of accounting standard to be remembered. We have a number of new words or vocabulary what we have to maintain to go through the proper way for the subject. So here, if somebody who is coming to the 11th standard, or we can say that who is taking admission at the level of lower KG in commerce stream, look at the word I am using, lower KG, LKG in commerce stream, we have to go through the first bookkeeping, then we have to move the basic books, and after getting 80% or 90%, somehow you can be 100%. But even if you ask me that sir what kind of account you are doing, I am explaining only 1%. So हम पहले यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद इस डिपार्टमेंट में जाएंगे. हम जनरली डिस्कशन अभी जो करने वाले हैं वो हमारी बुक कीपिंग का ही डिस्कशन करने वाले हैं. हम बुक कीपिंग का हिस्ट्री देखने वाले हैं, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, इसके बेसिक वर्ड्स क्या है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नल्स, the four major departments we have to study about is, the first one is transaction. The second word is entity. The third word and the most important topics, debit and credits. And the fourth, varied terminologies of accounting. यहां पे हमें ये चार टॉपिक
सबसे पहले क्लियर करने हैं टू गो थ्रू द सब्जेक्ट इन द सेम लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजेक्शंस अबाउट द व्हाट ट्रांजेक्शंस। इसी लेक्चर में मैं ट्रांजेक्शंस के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा और आपको ये दिमाग में रखना है कि एक्चुअली ट्रांजेक्शंस क्या है। If you are going through the any book of accountancy for the introduction, it is your second or third chapter. We are on the first chapter, but because starting anything, we are going to study the history of bookkeeping. Then we are moving to transactions, NTP, debit and credit, and then terminologies of the accountancy. And then we will discuss your textbook, whether you are in the CBSE board or whether you are in the any state board, because these are the basic lectures for the accountancy. So first of all, what is the bookkeeping? So the first time ever, the subject is properly guided by the Italian monk. He is also a great mathematician, or you can say he is a geometrician named Luca Pacioli in 1494. When? 1494. क्या किया? A book has been written named Dual Bookkeeping System. Look at bookkeeping and the name is Dual Bookkeeping System. यानी एक ऐसी बुककीपिंग जिसमें ड्यूअल इफेक्ट्स होते हैं. However, Luca Pacioli never claims that he has founded the subject. He has just guided the subject to the extreme level, not the accountancy, but the department of accountancy, knowing as what bookkeeping. Accountancy का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग. इस बुक कीपिंग को एक एक्सट्रीम लेवल तक गाइड किया है. किसने? लुका पैसियोली ने. कब गाइड किया है? 1494 में विद द बुक ड्यूअल बुककीपिंग सिस्टम और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स. तो यहाँ पे ये ड्यूअल इफेक्ट्स क्या है उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज परखनी है वो हमें देखना है ट्रांजैक्शंस को. किसको देखना है? हमें ट्रांजैक्शंस को. तो अब ट्रांजैक्शंस के बारे में हम बात करते हैं. किसके बारे में बात करते हैं? ट्रांजैक्शंस के बारे में. हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं. घर पे हूं तो उतना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, तो एक ये छोटे से कपड़े से मैं इसको साफ करता हूं. सोचा नहीं था कभी कि विदाउट स्टूडेंट्स लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, बट वो कहते हैं ना कि जो होता है कुछ अच्छे के लिए होता है. गीता में भी लिखा हुआ है कि आप अपने कर्म करते जाओ और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो. हम सब अभी इस पोजीशन में हैं. कोविड-19 से हम सब सफर कर रहे हैं एंड होप सो पूरा वर्ल्ड इस सिचुएशन में जल्दी से बाहर निकल जाए. जस्ट लीव इट. वापस सब्जेक्ट पे आते हैं. तो हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की. किसकी बात करते हैं? ट्रांजैक्शंस की. इसके अलावा भी मैंने एक लेक्चर आगे दिया हुआ है ट्रांजैक्शंस के बारे में. हो सकता है वो आप तक पहुंचा हो, ना पहुंचा हो, डोंट वरी. हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शंस को समझेंगे. बाकी के जो 3 पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे. तो ट्रांजैक्शन. तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस. मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हाट इज ट्रांजैक्शन. ये आपका पहला क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन क्या है. नया वर्ड आया. ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो आपने एक वर्ड सुना है शायद, एक्सचेंज. हैव यू एवर हर्ड द वर्ड एक्सचेंज? यस, आपने सुना होगा. क्या होता है एक्सचेंज?
एक्सचेंज का मतलब होता है एक दूसरे से गुड्स या सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से लेते हैं या दूसरों को चीजें हम देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं अकाउंटिंग टर्म में? अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे एक सिंपल सा वर्ड हम डालेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मैं वर्ड डाल रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजेक्शन। तो अब हम इसको थोड़ा वाइडली डिलीवर करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स कैसे हो सकते हैं। तो मैं यहां पे देख रहा हूं, मेरे पास एक फैमिली है, उसका एक ये छोटा सा घर है। ये फैमिली में 4 मेंबर है। जिनके नाम हम कैरेक्टराइज कर देते हैं एज यूजुअल, हम थोड़े अच्छे से नाम यूज करते हैं यहां पे। इनको मैं नाम दे देता हूं मिस्टर मकोड़ी। क्या नाम देता हूं, मिस्टर मकोड़ी। ये है मिसिस मकोड़ी। ये है मोटू मकोड़ी। और ये है छोटू मकोड़ी। हाँ देखो, हमने बहुत अच्छे से नाम दिए हैं, मिस्टर मकोड़ी, मिसिस मकोड़ी, मोटू मकोड़ी एंड छोटू मकोड़ी। ऑल ऑफ दैट, दिस इज मकोड़ी हाउस। विच हाउस, मकोड़ी हाउस। नाम दे देते हैं हम इस हाउस को मकोड़ी हाउस। क्या है हाउस का नेम भी, मकोड़ी हाउस, हमने इसको बना। अब ये जो मकोड़ी हाउस है फीलिंगली बहुत अटैच्ड है, फीलिंग वाइज बहुत ही स्ट्रांग है, एक दूसरे के लिए इनको बहुत रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल है। ये एक छोटा सा परिवार है और सुखी परिवार है। अब हम बात करते हैं कि हाउ द अकाउंट्स कैन इफेक्ट द मिस्टर मकोड़ी फैमिली। तो मैं ये सब यहां से निकाल रहा हूं, आपको अगर इसको लिखना हो या नोट्स बनानी हो तो आप लेक्चर को पॉज करके या रिवाइंड करके देख सकते हो। आज हम एक पूरा मार्केट का सीन क्रिएट करेंगे यहां पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो मिस्टर मकोड़ी है, इनका एक लोकल मार्केट है यहां पे। इस लोकल मार्केट का नाम है जीव जंतु। क्या नाम है, जीव जंतु लोकल मार्केट। इस लोकल मार्केट में नंबर ऑफ शॉप्स है। और इसमें से एक शॉप किसकी है, मिस्टर मकोड़ी की है। किसकी है, मिस्टर मकोड़ी की है। किसकी शॉप है, मिस्टर मकोड़ी। याद है ना हम कौन से टॉपिक पे है, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
तो यहां पे हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि एक्चुअली ट्रांजेक्शन क्या है। तो मिस्टर मकोड़ी सुबह घर से निकलते हैं और शॉप पे आते हैं। कहां पे आते हैं? शॉप पे आते हैं। हियर मिस्टर मकोड़ी इज डूइंग हिज डेली एक्टिविटीज। जो भी पूजा पाठ करना है, दुकान की साफ सफाई करनी है, वो करते हैं। दुकान ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद he is waiting for consumers. He is waiting for what? Consumers. इनके पास कंज्यूमर आया। मिस किड़ीबाई। कौन आई? मिस किड़ीबाई, जो कि इनकी कपड़ों की दुकान है, लेडीज गारमेंट्स ये बेचते हैं, स्पेशली ड्रेसेस और सूट्स वगैरह। हम ऐसा समझ लेते हैं, या तो हमने स्टोरी जो क्रिएट करी है उसी पे हम रहेंगे। तो मिस्टर मकोड़ी ने मिस किडी को 2 साड़ी दी है। कितनी साड़ी दी है? 2 साड़ीज। मिस किरीबाई आए, यहाँ पे एक पैकेट इन्होंने लिया है और इस पैकेट में क्या है? 2 साड़ीज। अब देखो, मिस्टर मकोड़ी का और मिस किडी का एक रिलेशन क्रिएट हुआ है। द रिलेशन ऑफ व्हाट? द रिलेशन ऑफ ट्रेडर एंड रिलेशन ऑफ कंज्यूमर। देखो, मैं वर्ड्स बहुत समझ के लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे सेलर वर्ड या बायर या परचेजर वर्ड नहीं लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे जो वर्ड है वो ट्रेडर और कंज्यूमर वर्ड लिख रहा हूं। हम आगे के लेक्चर्स में इसका भी डिफरेंस देखेंगे, जब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट वोकैबुलरीज। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन कंपाइल हुआ है, ट्रेडर और कंज्यूमर का। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ है? एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट व्हाट? मनी। यानी किड़ीबाई ने क्या दिए? पैसे दिए। और मिस्टर मकोड़ीमल ने क्या दिया? उनको साड़ी दी। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। अगर हम 21st सेंचुरी में हैं, we have a great form of medium of exchange, what we called money. It may be in the face of digital currency, plastic currency, paper currency, or green money, what we call our ATM cards and credit cards. But when we are talking about the business centuries ago, they do not have the form of money, so they are using what? They were using barter system, that is goods and services against goods and services. I am not going to deliver in detail because the same thing you have studied a lot in your social science subject, whether it is in 8th, 9th or 10th standard. You have a better idea about the barter knowledge, barter system. So यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हुआ है। एक दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक क्या देखते हैं? दूसरा ट्रांजेक्शन, कि आज मकोड़ीमल जो है वो घर पे बहुत जल्दी जा रहे हैं। वो घर पे क्या है? बहुत जल्दी जा रहे हैं। ये जो दुकान रोज मकोड़ीमल रात को 10 बजे बंद करते थे, आज मकोड़ीमल ने ये दुकान 7 बजे बंद कर दी। कितने बजे बंद करी है? 7 PM। भाई क्यों बंद करी आज 7 PM को? बिकॉज आज यहां पे ये जो मोटू मकोड़ी है उसका बर्थडे है। क्या है? उसका बर्थडे है। किसका बर्थडे है? मोटू मकोड़ी का। तो ये जल्दी जल्दी से घर आते हैं।
आज घर पे फंक्शन है। क्या है घर पे आज? फंक्शन है। किसकी खुशी में फंक्शन है? मिस्टर मोटू मकोड़ी जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो आज मिस्टर मकोड़ीमल घर आते वक्त एक गिफ्ट शॉप में रुके थे। कहां पे रुके थे? गिफ्ट शॉप में, जहां से उन्होंने मोटू मकोड़ी के लिए बाइसिकल परचेस करी है। क्या परचेस करा है? बाइसिकल परचेस करी है। तो यहां पे भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन हुआ है। किसके बीच में हुआ है? मिस्टर मकोड़ी और शॉप वेंडर। क्या रिलेशन बना? ट्रेडर एंड कंज्यूमर। क्या एक्सचेंज हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। अब ये जो बाइसिकल है, ये बाइसिकल मकोड़ीमल ने किसको दी? मोटू मकोड़ी को दी। यहां पे भी ट्रांजैक्शन हुआ, एक्सचेंज हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ, क्योंकि मकोड़ीमल के पास जो बाइसिकल थी वो बाइसिकल उन्होंने किसको दी? अपने बेटे मोटू को दी। अब मोटू मकोड़ी बाइसिकल आते ही अपने पापा को जल्दी से हक कर लेता है, एक किस करता है। वो अपने इमोशंस, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि ये जो फैमिली है वो इमोशनल है, फीलिंगफुल है, लवफुल है। तो यहां पे मिस्टर मोटू मकोड़ी जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट दिस बाइसिकल। अगेंस्ट व्हाट? दिस बाइसिकल। क्या एक्सचेंज हो रहा है? फीलिंग्स। क्या एक्सचेंज हो रहा है? फीलिंग्स। अब यहां पे हम डिफरेंस को थोड़ा बाइफरगेट करते हैं। अगर हम इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं या इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं, तो यहां पे गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस और मनी, यानी यहां पे जो कंसीडरेशन हुआ है वो मॉनिटरी कंसीडरेशन हुआ है। कौन सा कंसीडरेशन हुआ है? मॉनिटरी। बहुत सारे वर्ड्स नए आएंगे, आपको समझने हैं। मॉनेटरी कंसिडरेशन मींस विच ट्रांजैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, और हम उसको मनी के आधार पर तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। तो वैसे ट्रांजैक्शंस क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है। तो यहां पे ये जो मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहां पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? ये जो पूरा मार्केट है हमारा, यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इट हैव अ फिनेंशियल कंसोलिडेशन, फिनेंशियल कंसिडरेशन, फिनेंशियल वैल्यूज एंड फिनेंशियल प्रोपेगेंडास। उनके पास ये जो कुछ भी है वो फिनेंशियल टर्म में है। अगर हम यहां पे इसको देखते हैं तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसका ट्रांजैक्शन हुआ है? लव, इमोशन, फीलिंग्स, प्रेफरेंसेस। तो यहां पे ये जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स से जुड़ी है। ये फीलिंग्स हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, प्यार हो सकता है, नफरत हो सकती है, इस फीलिंग में इमोशंस हो सकता है, इस फीलिंग में चीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये फैमिली में भी होती है और ये मार्केट में भी होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट ट्रांजैक्शंस द बुक कीपिंग is going to take in accounts? So there is a two basic questions. The first one is what kind of transactions? So transactions have two different ways. What we call economic transaction. What we call what?
economic transaction which is directly related to the market, which is directly related between trader and consumer, or trader to trader, and the transactions which have monetary consideration और financial consideration. मैं यहाँ पे सिर्फ monetary consideration की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कुछ transactions ऐसे हैं जिसमें monetary consideration नहीं होता है, though they are going to be noted in the books. तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स है उसकी हम बात करेंगे. तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में मॉनेटरी कंसिडरेशन, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रेडर्स, ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स, देखो एक दूसरे से भी ये ट्रांजेक्शन करते हैं. तो ये जो मार्केट हाउस है आपका पूरा, ये लोकल मार्केट है, हम ग्लोबलाइज्ड मार्केट में है. बहुत सारे वे ऑफ मार्केट है जो हम इकोनॉमिक्स के देखेंगे, मेरे साथ ही आप देखोगे. आई एम गोइंग टू आल्सो टीच इकोनॉमिक्स यू. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां से आई? तो इसके लिए एक डेफिनेशन है, एनी एक्टिविटी एम टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट. एम टू गेट व्हाट? इकोनॉमिक बेनिफिट. यानी जहां से हमें इकोनॉमिक पैसों का बेनिफिट लेना है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. जहां पे हमें पैसों की कोई लालच नहीं है, जहां पे हम फीलिंग्स की बात करते हैं, हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो ये हो गए आपके नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इसमें फिनेंशियल वैल्यूज ऐड है, इसमें मॉनेटरी वैल्यूज ऐड है, लेकिन फिनेंशियल एक्टिविटी और मॉनेटरी एक्टिविटी के बाद भी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो नॉन इकोनॉमिक होता है. देखो डिफरेंस फिनेंशियल या मॉनेटरी का नहीं है, डिफरेंस किसका है? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का. यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, मार्केट पर्सपेक्टिव है, प्रॉफिट लेना है, सरवाइव करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मोटिव है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. यहाँ पे फीलिंग्स है, फैमिली है, लव है, इमोशन है, सोसाइटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एथिक्स है. इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का थॉट दिमाग में नहीं है. एक दूसरे को हेल्प करनी है, एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के साथ जीना है. इसीलिए ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक है. तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था, व्हाट इज ट्रांजेक्शन? तो ट्रांजेक्शन can be divided in two forms, economic events and non-economic events. When we are talking about the economic events, what is the definition? Exchange of goods and services against money or goods and services which have monetary or financial consideration, that is called what? Transaction. If you want to write the definition, I am going to repeat it. मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं और लेक्चर लंबा जा रहा है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ. once again I am going to repeat: exchange of goods and services against money or against goods and services which have monetary consideration or financial consideration is known as what? Transaction. Which kind of transaction? Economic transaction. A transaction which do not have economic point, or say which is non-economic transaction, which includes the feelings, which includes the love, which includes the emotions, which is bounded by the society and family, which do not have the basic perspective or objective to get the wealth maximization or profit instead of social services. It is known as what? Non-economic transaction. तो ये आज हमने बेसिक देखा है, ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने देखा है, हमने मार्केट प्लेसेस के बारे में देखा है, हमने फीलिंग्स के बारे में देखा है, हमने बुक कीपिंग के बारे में देखा है. हमारे जो नेक्स्ट 3 आउट ऑफ 3 टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कितना उसको ले सकते हैं, कितने टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं, उस हिसाब से हम चलेंगे. हमारे पास बहुत टाइम है अकाउंटिंग को सीखने के लिए. ये पिक्चर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इन योर रजिस्टर. ओके.
Thank you guys. We'll meet in the next chapter. If you want of online support, you can call me on 96012 56816 anywhere from India, anywhere from any state. Basically